الصبح بدا من طلعته. ایک شمعون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمعون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ ایک تو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب تو بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا، کہنے لگی تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی پی نے. حضرت شمعون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامد بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام دکھایا اللہ نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے. حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، اب یہ خیال نہیں آیا کھول دے. کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد پہ گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسی اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں؟ کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. آپ کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، ابو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کیا تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کیا تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کیا تجھے نجات دلائے. جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور کس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی،
अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी, और जब बाहर निकले तो ऐलान करने थे, लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नाम वो निशान मिट गया, और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा ना दे, फरेब ना करो। जो आप किसी को दे रहे हैं, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है, जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में उसका नुकसान उठाएगा। एक होता है मोहताज, एक होता है फकीर, इसमें फर्क है। एक आदमी को अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं मिलते तो वो फकीर नहीं, वो मोहताज है। उसके पास तो है ही नहीं तो वो कहाँ से पहने। लेकिन एक आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन वो भी सादा सा लिबास पहनना पसंद करता है, तो ये फकीर है, ये दरवेश है। कंजूस और दरवेश में भी फर्क होता। एक आदमी उसका पैसे लगाने को दिल ही नहीं चाहता, खर्च ही नहीं करना चाहता, वो बखील है, कंजूस है। लेकिन एक शख्स वो है जिसके पास सरमाया है, माल है, लेकिन वो अपनी जात को बढ़ाना पसंद नहीं करता, वो दरवेश है, वो फकीर है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने पैसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पक्का जन्नती है, पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हुजूर मेरी गलती, फरमाया जितने पैसे उतना हिसाब भी तो देना है। जिसके पास सिर्फ हैंड कैरी बैग होता है ना, वो फटाफट बाहर आ जाता है, और जिसके जितने ज़्यादा बैग होते हैं उसको उतनी देर चेन पे खड़े रह के इंतज़ार करना पड़ता है। तो फरमाया कस्टम भी तो तूने अदा करना है ना भाई, निकल के आना है उस जंगल से, तू कैसे जाएगा, जितना माल है उतना हिसाब देना है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े मालदार थे, 80-80 हज़ार दिरहम तो आपके इंतकाल के बाद आपकी अज़वाज के हिस्से में आए थे। इतने तगड़े मालदार थे, और देने का अंदाज ये था कि अपनी बीवी और बच्चों को खुली छुट्टी थी, कहते थे जो जिसका दिल का है खाओ। एक दिन में 5 अलग अलग खाने भी तुम पकाना चाहो तो तुम्हें इजाज़त है। कंजूस नहीं थे, बखील नहीं थे, लेकिन खुद जब खाना खाते थे तो दाल को पीस कर शोरबा बनाकर उसमें रोटियां भिगो के खाते थे। लोग पूछते कि जनाब हमारे लिए सारा कुछ है, बखील भी आप कोई नहीं, मालदार भी, ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाते थे सुरीद खा रहा हूँ, ये खाना मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये करीम का तरीका है, मैं वो तरीका, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये मेरा अंदाज है, मेरी जात के बारे में मेरा यही अंदाज है। सिरका खा रहे थे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों खा रहे हैं, कितने दिन हो गए, आपने बोला होगा गोश्त नहीं खाया तो खाए। फरमाने लगे बेटे कल लुकमा उठाया था गोश्त खाने को तो मुझे अपने नबी का फकर याद आ गया, मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो महीना खाना नहीं खाया वो याद आया है। तो हुजूर की वो चीज़ें मुझे इन आला ग़िज़ाओं में मुब्तला होने नहीं देती, तुम्हें इजाज़त है। तुम भाई बादशाही और फकीरी, आज लोगों के पास इतना कुछ होता है नहीं जितना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते, दिखाने का मामला हो गया। बल्कि कर्ज उठा के लोग अपने आप को बड़ा करके पेश करते, हालांकि ऐसा होता नहीं। इस्लाम फकीरी, बादशाही में फकीरी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसको समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे खुल जाएंगी। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे जिस्म को सुकून नहीं, वजूद को सुकून नहीं, ज़ाहिरी वजूद की बात की। तो हुजूर ने फरमाया इज़हद फिद दुनिया फरीक़िल क़ल्ब बद जस्ट, फरमाया दुनिया से दिल दूर कर ले, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ुहद इकट्ठा कर ले, दुनियादारी से ज़रा अपने दिल को दूर कर, अल्लाह तेरे वजूद को भी सुकून अता करेगा और तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। दुनियादारी इज़्ज़त फिद दुनिया, जरा हट ला दुनिया से, हट जरा, अल्लाह तेरे दिल को भी सुकून दे देगा और तेरे जिस्म को भी। अल्लाह सुकून, राहत, फरहत, फरीहन फिल क़ल्ब के लफ्ज़ हदीस में आए, फरहत का माना खुशी, तसल्ली, ताजगी अल्लाह अता फरमाएगा जब तू अपने आप को थोड़ा दुनिया से बचाएगा। अजीजों बड़ा शौक है, हम देखते हैं प्रोटोकॉल का बड़ा रंग है, बड़ा प्रोटोकॉल है लोगों का, 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे, बंदा एक बैठा है, वो समझता है कि वो जो ये जिंदगी है ये तो शायद किसी को मुयसर ही नहीं। और मैं अक्सर देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कैसा अजीब शख्स है, जिन पुलिस वालों का इसने प्रोटोकॉल पे लगाया है ना, हुकूमत खत्म होगी तो यही पकड़ के इसे जेल में डालेंगे, लेकिन ये खुश है। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक दरवेश था, तो वो सड़क से गुजर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े हुक्मरान हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, सब पे इनकी मुश्तरका हुकूमत।
स्वयं का एक गवर्नर रोड से गुजरना था उसने, तो सिपाही जो थे वो रास्ते साफ करा रहे थे। तो एक बुजुर्ग थे, अब्दुल बोली कलंदर के मुरीद थे, खलीफा थे, तो वो भी रोड पे गुजर रहे, तो तने तनहा हाथ में छड़ी पकड़ी है, तने तनहा गुजर रहे हैं। तो कहने लगे बाबा जी साइड में हो जाए, गवर्नर साहब ने गुजरना है। तो फरमाने लगे इतनी सड़क पड़ी है, गुजर जाएगा कि मुझे साइड पे करके गुजर जाए। मैं कहा नहीं आपकी मेहरबानी हट गया। कहा भाई मैं क्यों हटूँ, वजह उसकी, इसको इतना रास्ता है, गुजर जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो मुझे साइड पे करोगे, फिर रास्ता ढूंढता फिरूंगा। कहा बाबा तेरी मेहरबानी हट जा। निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या है, और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। उसने कहा मैं उसको क्या समझता हूँ, बादशाह होगा तो गार होगा, मैं उसे क्या समझता हूँ। और मैं नाराज ना होइएगा, अमीरों को खराब गरीबों ने किया है, बड़ों को खराब छोटों ने किया। अगर हम गाड़ियों के आगे पीछे भागना छोड़ दें तो लीडर सियाने हो जाए। ये हमारे नारे तबाही करते हैं, हम नहीं समझते कि हम कितना नुकसान करते हैं। निगाह फकर में शालो सिकंदरी क्या, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी। इकबाल कहते हैं कि वो तो बड़े फकीर हैं जिनको तुम बादशाह समझते हो, तुम्हारा टैक्स ना मिले तो उनकी हुकूमत नहीं चलती। तो खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या। खैर हजरत बोली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरवेश जो थे ना, वो रोड पे कहा बाबा जी हट जाए, कहने लगे नहीं हटता। उन्होंने बाजू पकड़ के ना बाबा जी को जरा जोर लगाना चाहा, तो बाबा जी ना आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के तो जमीन पे बैठ गए। कहना जो उठाया जाता हो तो उठा लो। अब तो दरवेश कभी जिद करते नहीं, और अगर करें तो मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशरज़ अकबर लौ अक़सम अलल्लाह लअबर्रा, फरमाया रब करीम का बंदा तो अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है। अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है। तो मैं जहाँ उठता हूँ तो उठा लो। बहस होने लगी, लोग इकट्ठे हो गए, रश हो गया। तो इतनी देर में गवर्नर साहब की सवारी भी पहुंच गई। तो गवर्नर साहब कहने लगे बाबा उठता क्यों नहीं। तो कहने लगे क्यों उठूं, इतना रास्ता है गुजर जा। मैं बाबा उठ क्यों शोर डाला होगा। कहने लगे तू मेरे नौकर का नौकर हो के मुझे उठने का कहता है, मेरे नौकर का। तो गुस्सा आया तो उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबा जी और हंसे, कहने लगे तुझे कहा था ना नौकर का नौकर है, तो वाकई नौकर है। उसने कहा मैं थप्पड़ फाड़ता हूँ, बाबा हंसता है। ये ज्यादा इंसल्ट होती है। आप करके देखें, आप गुस्से के जवाब में गुस्सा करें तो सामने वाले को कोई सजा नहीं। आप कभी गाली के जवाब में मुस्कुरा देना, याद अब मैं तेरे साथ बात करूँ, तेरे साथ बहस करूँ, तो ये ज्यादा बड़ी सजा। याद रखिएगा, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते। जब थप्पड़ मारा तो बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे तुझे कहा था ना तू गुलाम है, तू भाई वाकई गुलाम है। अब जब हंसे तो अब उसको ढारस हुई, तवज्जो हुई। कहने लगा बाबा माजरा क्या है, मैं कैसे गुलाम का गुलाम हूँ। तो बाबा कहने लगा देखना, तुझे मस्जिद आने का कहे तो तेरे लिए मुसीबत है। इतने लोगों को तू टाइम दे लेता है लेकिन अल्लाह को तू नहीं दे पाता। तो तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, लिहाजा तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तू मेरे नौकर का। कहने लगे ये सारी नफ्स परस्ती है, ये जो तूने दुनियादारी इकट्ठी की हुई है ना, ये जो तेरे नारे लग रहे हैं और तू समझता है कि ये मेरे, ये तू तनख्वाह देता है, तेरे नारे लगाते हैं। जरा तनख्वाह छोड़ के बात कर, फिर देख तेरे कितने नारे लगते हैं। तू ये डरते हैं तुझसे लोग, तेरे आगे पीछे भागते हैं। जरा इक़्तिदार से साइड हो तो ये पता लगे तेरी कीमत क्या है। तू समझता है कि मेरी जेब में पैसे हैं, लोग मुझे सलूट करते हैं, तो नहीं है, तुझे सलाम कोई भी निकाल रहा, तेरी जेब को सलाम हो रहा है, तेरे उहदे इक़्तिदार को और तेरी वहशत और दहशत को सलाम है। उसने कहा हज़रत जी मुझे सलाम कब होगा। तो फरमाने लगे जब तू बादशाही में फकीरी करेगा, जब तू बादशाही में भी फकीरी होती है मेरे अजीजों, बादशाही में भी फकीरी होती है। आपके इस हिंदुस्तान का एक बादशाह का नाम औरंगजेब आलमगीर भी है। औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगजेब आलमगीर बीमार हो गए। आखिरी वक्त मिंबर पे चढ़े और लोगों को कहने लगे लोगों, तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी दो उंगलियों पे स्याही क्यों लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयानतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही क्यों लगी हुई है। औरंगजेब आलमगीर मुतहिदा हिंदुस्तान का मुतलकुल ऐलान बादशाह कहने लगा मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने सारी जिंदगी हुकूमत के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैं किताबत करता था, किताबें लिख के जो मुझे मजदूरी मिलती थी, और मैं टोपियाँ सिया करता था, मेरे हाथों में सुराख हो जाते थे। मैंने उसका रिज़्क़ हलाल खाया है
और फरमाया 50 रुपए फलां जगह मैंने रख दिए हैं, मैं मर जाऊं तो उसका मुझे कफन दे देना और लोगों को बताना कि ओ हिंदुओं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उस तरह हुकूमत की। वो खुतबा पढ़ रहे थे, औरंगजेब खुतबा पढ़ रहे थे और गलियों में खड़े हिंदू कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। मेरे दोस्त, ये बादशाही में फकीर। हमारे पास तो पैसे आते हैं तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है, ये भी प्रोटोकॉल है। ड्राइवर ने गाड़ी भी चलानी है और सांप का दरवाजा भी खोलना उसने। अंदर बैठे के तो दरवाजा भी ड्राइवर साहब ने नफ्स परस्ती है, जितना मर्जी आगे ले जाओ, इतना मर्जी। ये कोई बादशाही, ये कोई आपका बड़ापन नहीं है। वो तनख्वाह लेता है, मजबूर है, क्या करे। हो सकता है कल को उसके पास पैसे आए तो बदला लेने के लिए आपको बुला लेके चल मेरा दरवाजा। वो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ थोड़ी ऐसे कर रहा है। हम सरा माल आता है तो हम बड़े बन जाते हैं। जो बड़े थे वो हजरत मौला कायनात शेर खुदा अली को भी मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह को नसीहत ही कर दे हुजूर मुझे कोई। तो हुजूर ने फरमाया, अली जो दुनिया में प्रोटोकॉल लेता है आखिरत में रुसवा हो जाता है। जो दुनिया में दुनियादारी दबदबे तंतने की ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश कर। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है। मुल्ला रूमी कहते हैं, हमारे पास फिरौन जितने पैसे नहीं, नमरूद जितनी दौलत नहीं, वरना कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़ अल्लाह ताला। वो कहते कई लोगों का दिल करता है कि लोग हमें सजदा करें, लेकिन फिरौन और नमरूद जितनी ताकत दौलत नहीं, वरना लोग कराए। माज़ अल्लाह ताला। ख्वाहिशात नफ्स इतनी बढ़ गई, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमारे लीडर कहते हैं 2-4 बंदे हल्के में मरे ना तो इलेक्शन का मजा ही नहीं। माज़ अल्लाह ताला, ये हमारा हाल हो गया। हम नाराबाजी की कायल कौम है, हम नारों पे जिंदा रहने वाले नफ्स परस्त बनते जा रहे हैं। शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुए रसूल करीम ने फरमाया, जो यहाँ इज्जतें ढूंढता है, यहाँ ख्वाहिश करता है नारों की, प्रोटोकॉल की, आखिरत में रुसवा कर दिया जाता है। और फरमाया, जो यहाँ झुक जाता है अल्लाह क़यामत में उसे इज्जतें अता फरमा देगा। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, ज़माना डरता था, बड़ा नाम है। फकीरी और चीज़ है, दरवेशी। इकबाल कहते हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लालाओ गुल से इस कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेटी गरीबी में नाम पैदा कर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रात को बैठ के ना लिख रहे थे, तो एक नौजवान आपकी खिदमत के लिए रहता था हर वक्त। हज़रत जी लिख रहे थे, चिराग जलना था तो वो तहरीर कर रहे थे। एक मेहमान भी आया हुआ था, तो वो नौजवान ना बैठे बैठे ना लेटा तो सो गया। तो जो है कि मेरी बात पे बैठा बैठा ना वो बेचारा सो गया, तो हज़रत ने तकिया पेश कर दिया। वो नौजवान ने तकिया पकड़ा तो उसने लपेट लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गुल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा, जी मैं चिराग जला दूं? फरमाने लगे, नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। काफी इसको उठा ले, कहने लगे, जवानों को नींद ज्यादा आती है, सोया रहने दो। कब्जू सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे, यार सोया रहता तो क्या अर्ज है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए वो कहता है कि तू नौकर मेरे मुंह में कभी लुकमा भी डाल दे तो फिर ही है। वह मैक्स का मुझसे तनख्वाह लेता है और अब ये इतना काम भी नहीं कर सकता। हर काम हम कराना पसंद करते हैं। कहा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा, हुजूर अजीब बात, बादशाह है, आपने गुलाम को जगाया नहीं। हज़रत उमर ने क्या, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो कानून पेश किया बड़ा जबरदस्त है। फरमाने लगे, कुम तू आना उमर बिन अब्दुल अजीज, रजा तू आना उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाने लगे, क्या हो गया है? मैं जब चिराग जलाने गया था तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और वापस आया हूँ तो फिर भी उमर बिन अब्दुल है। मैं तब्दील है। मुहतसिब ने जोजी ने लिखा है, कहने लगे, कुम तू जब गया था आना उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर भी उमर बिन रजा तू, और मैं लौट आया, वापस आया हूँ तो देख लो को कमी तो नहीं हुई, मेरा बाप भी वही है, मैं भी। आना उमर बिन अब्दुल अजीज ने बदला तो दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। बादशाही में जो फकीरी है ना मेरे दोस्त, जो उसकी लज्जत है, देखिए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2000 के बादशाह। हुजूर फरमाते हैं, मेरे 2 वजीर जमीन पे हैं, 2 आसमानों पे हैं। वजीर किसके होते हैं? बोलिए ना, 2 मेरे वजीर तिरमिज़ी की हदीस है, 2 जमीन पे हैं, 2। हुजूर जमीन वाले वजीर कौन से हैं? फरमाया अबू बकर और उमर। आसमान वाले कौन है? फरमाया जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम। मेरे 2 वजीर यहाँ है, 2 वजीर हुजूर बादशाह है, वो 2 आलम की रहमत थे, जहाँ चाहते वहीं रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया
हुजूर दो जहां के बादशाह है, लेकिन मेरे नबी पाक कपड़ा खुद सी रहे हैं। जूता टूट गए हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ भी, उनके मेरे ख्याल जूती में ज्यादा का मौका नहीं दिया जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 10,000 लोग जो तनख्वाह लेता है वो भी जूता गांठता हो, नहीं आप ही की गंढ में किसी को भी नहीं कटाई था। क्या ख्याल है आपका? ठीक बात कर लो। नबी पाक जूता भी खुद गांठते, कपड़ों को पैबंद भी, हुजूर अपने कपड़े धो भी खुद लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध भी धो लेते। और ऐसा भी होता, ये बादशाही में फकीरी है ना, दो जहां के बादशाह, लेकिन सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमाती है घर आए, कहा आयशा खाना तैयार है, कहा नहीं हुजूर अभी तो खाना तैयार करना है, मैं तुम आग जलाओ मैं आटा गूंद देता हूँ। किसकी बात है? नहीं लड़ना चाहिए, रखना चाहिए, तुझे मंगया दे पैसे मेरे को पहली के, मैं डंडे नहीं मार दे। मैं आया तो पता नहीं मैं किसी बुला दा नाम दूसरा टुकर ही नहीं पकाया, मैं आ गया का तो पता ही नहीं लगा, मैं ही आ गया का। अल्लाह खैर है भाई, हिटलर ना बनो हर जगह, हिटलर ना बनो। उसने सलूक जिंदगी का हिस्सा है, पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं गया नबी करीम से मिलने तो मोटे बांध की चारपाई, हम उसे अजी मुंजी मंजी आंदे साहब, मोटे बांध की चारपाई, मिशकात की हदीस है। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं सख्त दिल वाला शख्स था, हुजूर से मिलने गया तो नबी पाक आराम कर रहे थे चारपाई, मैं जाके करीब जमीन पे बैठ गया। हुजूर ने आहट सुनी तो हुजूर उठे। फरमाते हैं जब नबी पाक उठ के बैठे तो हुजूर के वजूद पर मैंने बांध के निशान देखे। कहते हैं मैं रो पड़ा, सख्त दिलता पर रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर कैसे किस तरह मौजें करे और आप इस बांध की चारपाई पे? तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया उमर तुझे अच्छा नहीं लगता, जितनी मौज करनी है दुनिया में कर ले, आखिरत में जलील हो जाए। फरमाया उनको करने दे मौज, वो तो जलील होने के लिए कर रहे हैं और मैंने इस दुनिया से क्या लेना है, थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए आया हूँ। यहाँ आके बंद होंगी, वहाँ मेरा रब सारी इज्जतें मुझे ही अता फरमा देगा। इस हद से दुनिया फरीह क़ल्ब बलजस। मेरे अजीजों, ये फकीरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवेशी मेरे रसूल पाक की। हजरत बिलाल हबशी को जोदे सवेरे बुलाया और बुला के बोला बिलाल रात तूने मेरे बिस्तर पे कपड़ा डबल करके बिछा दिया था, डबल करके बिस्तर बिछा दिया था तूने। या सुल्ला क्या हुआ? फरमाया नींद तो मुझे बड़ी आई है पर मेरे नफल कुछ रह गए, आज के बाद डबल करके ना बिस्तरा बिछाना, सिंगल ही बिछाना, उस पर जरा करवटें बदलता रहता हूँ तो आग जल्दी खुल जाती है। मेरे दोस्तों आशा कहाँ लोग यकीन करें ना, गर्मियों में सवेरे उठते हैं ना सर्दियों में उठते हैं। गर्मी में एसी नहीं उठने देता और सर्दी में बिस्तर नहीं जान छोड़ता, उठते ही नहीं हम, बल्कि बाकी के मामला भी हमारे इसी परेशानी का शिकार है। सुनो और याद रखो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई, बादशाही में फकीरी। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई। हजरत सैयदना सलमान फारसी को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदाइन का गवर्नर बना दूं। हजरत सलमान फारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफ़ा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था। या हजरत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर, का जी जैसे आपका हुक्म है, अमीर की बात मान लो, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है? गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे। अल्लाह अकबर। जहाँ सवारियाँ उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहाँ वो लाके उतारते थे, वहाँ एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके पास बड़े बड़े बक्से थे, उसने हज़रत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आ। हज़रत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फला घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जुर्रत तो करे कोई जुर्रत तो करे, काउंसलर साहब को भी आवाज देने की ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फाइल, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कहते तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर को ही कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया और गलियों में गुजर, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, तेरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हजरत सलमान फारसी रो पड़े।
फरमाने लगे तू मेरा मौसम है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना, तू तो मेरा मौसम है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना, अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे। ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर। तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहाँ मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त, हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल हैं, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फकीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेने चाहिए, तो ना बोले आप लोग, मुश्किल काम बता दीजिए ना। मैंने किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा? ये अल्लाह खैर करे, मैं क्या मैं तो मारे दी गल कर चली, बोले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका नफ्स कुचला जाए। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफर कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फर्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, वे खुद ही उन्हें आधा किलो खाने कहने दो को कहता है। कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले भाई। कभी कभी आप भी, कभी कभी जो आपका मुलाजिम है ना घर में, उसको बिठा के खा करे, बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूं। कभी कहा करें घर वालों को बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना, जिस पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पर किसी गरीब को भी बिठा कर देखें, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये इस पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए ड्यूटी अल्लाह के दरवाजे खोल रखे हैं, ये रोज हमें दूर करना। ये नफ्स परस्ती की जान होती है, ये बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है। ये नबी पाक की मोहब्बत से